The topic is how to launch an app on AppExchange app as a beginner. How many of you are like really beginners and want to start an AppExchange app on AppExchange? All right, 2, 3, 4. Somewhere around like 10% of the people who are sitting over here. See, we've already produced a lot of resources on how to actually launch your AppExchange application, and it's very in detail. In the time that is given to me for this session, that is 30 minutes, I did not want it to waste your time as well as my time by providing that redundant information again back to you. So I've prepared something else. Are you interested into looking into that, or you want to know about the resources that we have already created to list an AppExchange app as well? Something new. Let's go over that. So I'm not here to tell you how to pick an idea, how to build an app around it. मैं ना हिंदी में बात कर सकता हूँ. Is there anyone who is not comfortable with हिंदी? मैं हिंदी में बहुत comfortable हूँ, पर पता नहीं लोगों को engagement हिंदी में आता है. Anyone? You're not comfortable with English, Hindi? No, you're comfortable. Everyone is comfortable with Hindi. All right, I'll just mix and match. I'll not tell you how to pick an idea. मैं नहीं बताऊँगा कैसे idea pick करना है. I'll not tell you how to build an app around it. I'll not tell you how to list it on AppExchange. I'll not tell you how to market it and how to sell it. Because it is not worth to waste the time on providing you the redundant information. For that, we already have a QR code that you can click. All the resources related to it, you can just simply check it out on this QR code, download it, like watch it on the website that we've already posted. और वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाएगी हर चीज़ की कि भाई कैसे कैसे AppExchange ऐप लिस्ट करनी है, उससे लिस्टिंग से रिलेटेड क्या चीज़ें होती है, मार्केट कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है, बनानी कैसे, बनाते टाइम ध्यान क्या रखना है, सारी सब कुछ चीज़ें उस पर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. उसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. हमारे पास यहाँ पे AppExchange के एक्सपर्ट्स भी बैठे, तो हम इनकी भी हेल्प लेंगे पूरे सेशन के अंदर. कहीं पे अगर मैं गलत हो जाऊँगा या कमी पड़ जाएगी तो ये हमारी हेल्प करेंगे उसके अंदर पूरी जैसे हमेशा करते आए हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. लाइक वर्थ नहीं है वो टाइम वेस्ट करना, तो हम आगे बढ़ रहे हैं. वर्थ क्या है? नोइंग द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट रियली मैटर्स व्हाइल यू आर बिल्डिंग एन AppExchange एप्लीकेशन. The key things that matters while building an AppExchange application or while launching it or while doing everything around it. Shall we start with it? I have a 5-step process, and in those 5 steps there are sub pointers, and in those sub pointers we're going to talk about exactly what matters, and you should focus on to these points only. उसके अलावा कुछ चीज़ अगर मैं मिस कर जाऊँ, you can tell me about it, we'll discuss अगर वो important है या नहीं है, but mostly सारी चीज़ें इसके अंदर covered है. इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि इतनी ज़्यादा मैटर करेगी. Let's start with it. सबसे पहले define the purpose. There are different reasons why different people want to start an AppExchange application. A lot of people want to do it for fun. A lot of people want to do it for यहाँ दिखता है ना, हाँ, for learning. A lot of people want to do it to showcase their talent to their current employer or to their next potential employer. And the majority of the ones want to do it to make more money. How many of you belong to the A category? For fun, मस्ती के लिए किसको AppExchange ऐप बनानी है? किसी को नहीं बनानी. For learning किसको बनानी है? ठीक है, for learning you want to make it. Great. For showcasing your talent? नहीं, 2-4. For money? Exactly. Let's go for it. He's like, कितना बनाओगे? So let's talk about it. For learning, some people said it over there. The point is, it's not a great idea to start off and then learn. It's much better to work with the people who have already started it or who have already done it and work for them and work onto their idea rather than just do it for your own learning, right? So that's a better approach rather than thinking about all of the steps. So आगे मैं जितने भी steps बताऊंगा, if you are in here to learn AppExchange app, वो relevant नहीं रहेंगे, ठीक है? Showcasing your talent बहुत ही कम थे. Money की बात है, money में 2 तरीके से product में पैसा कमाया जाता है. पहला by selling the licenses, दूसरा by selling the app. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लोग दूसरे पार्ट में बिलोंग करते हैं क्योंकि जब वो पैसा नहीं कमा पाते तो उनको ये लगता है कंपनी बेच देते, इतने साल की मेहनत लग गई या इतने साल का पैसा लग गया, सारी सब कुछ चीज़ें लग गई. मुझे नहीं पता सेकंड बेनिफिशियल होता है फर्स्ट बेनिफिशियल होता है, पर बेसिक फंडा इतना सा है, जब तक तुम्हारे पास पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं आ रहा है तब तक कोई भी बिजनेस या कोई भी ऐप का सेंस नहीं होता है. और वो पॉजिटिव कैश फ्लो तुम्हारे पास तभी आएगा जब तुम्हारे क्या नाम से लाइसेंसेस बिकेंगे. तुमने कंपनी में बेच दी, वो तो तुम्हारी लेबर बेची टेक्निकली है और भी पता नहीं, और वो भी बिकना इतना आसान होता नहीं है. So these are the 2 ways. We'll next talk about कि क्या है क्या नहीं है, और आगे अपन पूरे steps पे उसी पे बात करेंगे. If you want to list an AppExchange application to make money, what are the steps that you have to follow? Anybody over here who wants to make an AppExchange application for fame? मेरे को फेमस होना है डेवलपर कम्युनिटी में, मेरे दोस्तों के अंदर मेरी AppExchange एप्लीकेशन लाइव है. यार बड़े ही अच्छी क्लियर है भाई, पैसा दे दो हमको,
ठीक है, फॉर एक्सटेंडिंग द यूजर बेस, एनीबडी ओवर हियर हु ऑलरेडी हैज एन ऐप ऑन सम अदर प्लेटफॉर्म, सम अदर टेक्नोलॉजी, हु वांट्स टू पुट इट ऑन टू ऐप एक्सचेंज टू एक्सटेंड द यूजर बेस? किसी के पास ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन किसी और प्लेटफॉर्म पे है क्या जिसको वो ऐप एक्सचेंज पे लिस्ट करना चाहता है? नहीं। एक कौन सी है भाई? नहीं है मुझे पता है? अच्छा ठीक है, तो विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन टू द आइडिया. A lot of before starting this out, चलो करते हैं. हाँ, brainstorming the idea. Brainstorming the idea basically means आपको लगता है कि यार मुझे नेक्स्ट अमेजिंग ऐप बनानी है जो मतलब बस नेक्स्ट सेल्सफोर्स ही हो जाए, नेक्स्ट फेसबुक हो जाए, नेक्स्ट इंस्टाग्राम हो जाए. और ये टिपिकली एक डेवलपर माइंडसेट का जो बंदा होता है वो इस तरीके से सोचता है, और वो हमेशा ये सोच के चलता है कि भैया मुझे तो बस कुछ अलग करना है और उससे मैं पैसा कमा लूँगा. टिपिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कुछ अलग करने से पैसा नहीं बनाया जाता है, कुछ अलग तरीके से होता है. वो देख लेते हैं क्या क्या होता है. नंबर 1, ब्रेनस्टॉर्मिंग द आइडिया का स्टेप प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है. डू द एनालिसिस, मार्केट रिसर्च कर लो, बिजनेस यूज केस एनालिसिस कर लो, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लो, ऑलरेडी उसके अंदर कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स बैठे, आपका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या रहेगा. अभी मैं किससे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 270 लोग ये ऐप बेच रहे हैं ऑलरेडी, और अब उसमें 270 लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सेम फंक्शनैलिटी ऐप एक्सचेंज पे बेच रहे हैं. जो आप क्या यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन दे दोगे अगर आज स्टार्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर बिजनेस यूज केस के ऊपर? So make a smart decision, make a smart move, right? Either build, first of all, there should be a market that should exist, because without great sums of money you can't create a market. होता क्या है, सब फेसबुक की स्टोरी सुनते हैं और सोचते हैं हम भी प्रोडक्ट बनाएंगे और फेसबुक बना देंगे. फेसबुक वाले के पास अनाप शनाप पैसा था कि जो मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता था वो मार्केट बना पाया. अमेजॉन वाले के पास अनाप शनाप पैसा था, जो मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता था वो अनाप शनाप मार्केट बना पाया. पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द लोग वो ये चीज नहीं कर सकते. उनको एग्जिस्टिंग मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी दिखे उसे टैप पहले करना चाहिए, रादर देन एक पूरा मार्केट खड़ा कर देंगे उस लेवल पे जाना चाहिए. एंड अकॉर्डिंगली दे हैव टू थिंक अबाउट द बिजनेस यूज केस एंड द आइडिया ऑफ द एप्लीकेशन दैट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड, राइट? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड यू हैव टू ऑफ कोर्स फाइंड आउट अ यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी दे रहे हैं. आप या तो उससे सस्ता बेचोगे या उनसे बेटर फीचर बेचोगे, या कहाँ पे आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट निकाल के लाओगे वो आपकी जिम्मेदारी है. और जब तक आपका ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाए, बिल्ड करना स्टार्ट मत करना. मेजॉरिटी ऑफ यहाँ पे डेवलपर्स कितने हैं या कोडर्स कितने हैं? एग्जैक्टली, ये सब की प्रॉब्लम एक ही है, पहले दिन से बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं. करना ही नहीं है भाई, काम पहले दूसरा वाला कर लो, पहले देख लो बाजार है या नहीं है. मतलब उसमें पैसे, एनर्जी, टाइम और बहुत सारे एफर्ट वेस्ट होते हैं, जो कि बहुत दुख लगता है बाद में, 1 साल बाद जब हो जाते हैं. फिर उसके बाद आता है, इफ यू रियली वांट टू मेक मोर मनी, दीज आर सम सजेशंस दैट आई हैव फॉर यू. Focus on working on a popular idea rather than a unique idea. When I say popular idea, I am not trying to say कि 270 applications already listed है. All what I am trying to say is कि जिसकी डिमांड ऑलरेडी मार्केट में अच्छे लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है, पर कोई अच्छे से उसको टैप इन नहीं कर पा रहा है. लोग सोचते हैं मुझे कुछ अलग बनाना है, मतलब मैं जूम की जैसे एप्लीकेशन तो बनाऊंगा पर कुछ अलग हटके होना चाहिए उसके अंदर. अलग हटके वाली चीज़ें नहीं चलती है. बाजार को जिस चीज़ की डिमांड है और जिसके लिए वो पे करने को तैयार है, वो वही चीज़ बिकेगी और वही चीज़ चलेगी. मतलब, और अगर तुम उसको नहीं बेच पाए तो तुम्हारे लाइसेंसेस भी नहीं बिकेंगे और पैसा नहीं कमा पाओगे, और तुम्हारी एप्लीकेशन भी नहीं बिकेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी एप्लीकेशन कोई मर्जर के लिए, एक्विजिशन के लिए कुछ लेके भी आएगा तो तुम्हारा रेवेन्यू पूछेगा, तुम्हारी एप्लीकेशन के लाइसेंसेस ईयरली कितने जा रहे हो, तुम्हारे एक्सपेंसेस क्या है, और उसके हिसाब से तुम्हारी वैल्यूएशन मिलेगी. So if you're not making money by selling the licenses, the chances of you selling that application also to whatever VCs, private equity funds, or even to Salesforce are very slim. Very slim, क्या almost negligible. Next, industry agnostic बना दो rather than industry specific. A lot of people, a lot of great consultants who might be sitting over here might contradict onto this कि industry specific solutions ज़्यादा बढ़िया रहते हैं, कुछ रहते हैं, but पैसा कमाने के लिए industry agnostic ज़्यादा better रहते हैं, क्योंकि जिस दिन वो इंडस्ट्री डाउन जाती है, खुद जाती है, दूसरी इंडस्ट्री बैलेंस आउट कर देती है. अगर एग्नोस्टिक बना रहे हो, लोगों को पता है कि इंडस्ट्री एग्नोस्टिक क्या होता है? मतलब एक तो मेरा ये प्रोडक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज की इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर ये पर्टिकुलर सेगमेंट की कंपनीज के लिए ही है, और एक आपका प्रोडक्ट है कि हमें फर्क नहीं पड़ा आप फाइनेंशियल सर्विसेज से हो, आप इंश्योरेंस से हो, आप रिटेल से हो, आप कंज्यूमर गुड्स से हो, किसी से भी हो, आप ये प्रोडक्ट हमारे लिए रेलिवेंट है और हमारा जो काम करना है वो करके दे सकता है. So it's much better to create the application onto industry agnostic solutions or industry agnostic use cases rather than industry specific ones. Build a native application rather than a non-native one. Amazing coders who know how to code on Golang or Amazon AWS trying to build coding applications onto some other technology and try to integrate it with Salesforce platform is the worst thing that one can do. There was a time in 2016 probably when there were two companies who used to exist into CPQ and CLM. Number one was SteelBrick, 2014-15 में exist कर दी थी. SteelBrick और नंबर 2 Aptus. Aptus बहुत बढ़िया थी, उसका कस्टमर्स भी रिलेटिवली ज़्यादा थे, पर SteelBrick के रिलेटिवली कम थे, पर फिर भी Salesforce ने SteelBrick को एक्वायर किया क्योंकि वो नेटिव थी.
तो नेटिव एप्लीकेशंस को ऑलरेडी प्रायोरिटी मिलती है। क्यों क्योंकि सबसे बड़ा खरीदार तो अब उसकी एप्लीकेशन सेल्सफोर्स की एप्लीकेशन का सेल्सफोर्स ही है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशंस भी वही देता है, तो सबसे ज़्यादा चीज़ें भी वही बिकेगी, और वो उसी चीज़ को प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म के सूट के अंदर लेके आता है जो नेटिव बनी हुई है। तो नेटिव बनाना रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट रादर देन नॉन नेटिव। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है अभी तक? वैसे लास्ट में होगा क्वेश्चन आंसर। सॉर्टेड, ऑल राइट। थर्ड इज गैदर द रिसोर्सेज। यहाँ तक बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं और यहाँ तक पहुँचने के अंदर बहुत सारे लोगों का टेस्ट भी हो जाता है। तुम जिन 4 दोस्तों के साथ मिलकर बनाने की सोच रहे होते हो कि हम लोग ऐप बनाएंगे और हम लोग एक नया बिजनेस खड़ा कर देंगे, उनमें से 2 गायब हो चुके होते हैं ठीक है, जब तक रिसोर्सेज गैदर करने की बारी आती है, और उसमें से जो एक है वो भी गायब हो जाएगा जब तीसरा स्टेप की बारी आएगी। तो क्लियर रहना कि तुम कैसे बनाओगे वो चीज़ें। रिसोर्सेज के बिना कोई चीज़ बिल्ड नहीं होती है। ये दिस इज द प्रैक्टिकल वर्ल्ड दैट वी लिव इन, एंड you'll have to gather the resources, and it is your sole responsibility to gather the resources. Nobody else is going to give it to you. ठीक है? And if you don't have the resources, focus on to building the resources and then building the application rather than the other way. कि मैं I'll start building the application and resources will come along the way. It will not happen that way. Let it be very clear. Gather the resources. सबसे पहले mindset चाहिए भैया, और mindset के अंदर जो एप का फर्स्ट पॉइंट है वो पढ़ लो। Be willing to do whatever it takes. As simple as that. You have to be very clear. जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे भैया, बात इतनी सी है। आप बोलो मैं तो डेवलपर हूँ ना, ये काम तो UI UX डिजाइनर का है, मैं तो डेवलपर हूँ ना, या मैं तो आर्किटेक्ट हूँ ना, ये तो मेरे को कोई वो बना के देगा। नाउ यू आर नॉट वर्किंग इनटू कंसल्टिंग कंपनी जहाँ पे तुम्हारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और क्लाइंट की बिलिंग बहुत अनाप शनाप लेवल पे चल रही है कि तुम्हें हर काम के लिए कोई बंदा दे दिया जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि एम आई रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स। वॉट एवर इट टेक्स का मतलब इतना सा है कि हाउसकीपिंग वाला बंदा भी नहीं आया तो बाजार में जाके ढूंढ के लेके आना पड़ेगा कि मेरे ऑफिस का हाउसकीपिंग कैसे मैनेज होगा। अगर वो करने के लिए तैयार नहीं हो तो मत चालू करना, ठीक है। नेक्स्ट इज बी 100% फोकस ऑन कस्टमर सक्सेस। योर होल एंड सोल फोकस शुड बी ऑन टू मेकिंग श्योर दैट वॉट एवर योर कस्टमर्स नीड दे आर गेटिंग इट द वे दे वॉन्ट इट। आपको टेक्नोलॉजी की स्किल कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा कोड लिख रहे हो, आपका कोड कितना अमेजिंग डिजाइन पैटर्न्स पे बना हुआ है, नोबडी केयर्स। At the end of the day, customer pays for the value that they receive, and you have to focus on to the value that they are looking for, not onto the ये सारी चीजें। Of course, these things matter when you scale the product and all of that stuff, but that can be taken care of if you are focused onto the customer success. But the other way around, और यहाँ पे ना ऑडियंस टेक्निकल है तो इसलिए मैं बहुत सारी टेक्निकल बात कर रहा हूँ। टेक्निकल लोगों समझो यार, most of the people who made great money into products are not the people who were great into technology or who were great into building a product. They were great onto something else and they knew that what is of a priority rather than the other thing. और डेवलपमेंट में यही प्रॉब्लम होती है जो डेवलपर्स प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर फोकस्ड ऑन टू कस्टमर सक्सेस 100%। वैल्यू टाइम एंड बी क्विक। आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इफ यू गोइंग टू बिल्ड अ प्रोडक्ट। आप सोचो मैं आराम से बनाऊंगा लेकिन एक बार बनाऊंगा अच्छी बनाऊंगा, फॉरगेट अबाउट इट। 3 साल में बिजनेस की यूज केस इररिलेवेंट हो जाएगा, मार्केट में और कॉम्पिटिशन आ जाएगा, कुछ और चीज़ें हो जाएगी, आपका बिजनेस गायब हो सकता है, मतलब वो सेल्स खुद लेके आ जाएगा ठीक है तो मतलब यू हैव टू वैल्यू टाइम। अगर तुम टाइम वैल्यू नहीं कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम 2-4 पैसे बचा लोगे पर 8 महीने लगा लोगे खुद ही करने में उस काम को, तुम प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये माइंडसेट रेडी करना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Everything is 100% your responsibility apart from success. Everything that fails in the application is 100% your responsibility. You cannot put the blames onto other people कि इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, because nobody is going to listen to all of these things. In your job there were people who were looking into who were listening to all of these things because they had to listen to कि इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। तुम्हारे यहाँ पे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। सक्सेस टीम की है, ये और इंपॉर्टेंट है कि अगर सक्सेस हो गई तो भैया अरे यार तुम लोगों की वजह से हो गई भाई, थैंक यू सबको जरूर करना इंपॉर्टेंट है और सच में फील करना भी इंपॉर्टेंट है। पर फेलियर 100% तुम्हारा रहेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 100% तुम्हारी रहेगी। तो उसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है, तुम्हारा माइंडसेट वैसे ही रहना चाहिए। बी अडैप्टिव। जब मैंने स्टार्ट किया था, ब्रेनस्टॉर्म किया था आइडिया, तब मुझे लगता था ये है, पर आज 2 साल हो गए, मैंने जब ऐप लाइव करी तो बाजार में कुछ और है। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं अडैप्ट करने के अलावा। बी एब्सोल्युटली अडैप्टिव। ऐप सक्सेस और फेलियर डजंट डिफाइन योर सक्सेस। एक और चीज़, प्लीज डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। अगर तुम्हारी ऐप सक्सेसफुल हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सक्सेसफुल आदमी हो या सक्सेसफुल आदमी बनोगे या नहीं बनोगे। मतलब 100 चीज़ें बनाते हैं, 2 चलती है। टेलर स्विफ्ट के भी मतलब 100 गाने बने होंगे, उसके बाद में 6 इतने तगड़े हो गए कि वो उन मतलब 100 क्या उन 1000 का कमा के खा गई होगी। सो एक इंडिविजुअल ऐप का सक्सेस या फेलियर तुम्हारी सक्सेस और फेलियर डिफाइन नहीं कर रहा है। ये माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। और आपको लग रहा होगा बोले क्या बात कर रहा है, ऐप एक्सचेंज ऐप लिस्ट करने की बात करें ना यहाँ पे आके, पर भाई पहले ये तैयारी कर लो और फिर उसके बाद ऐप एक्सचेंज ऐप बनाने जाना, क्योंकि ऐप एक्सचेंज ऐप बनाना तो तुम सबको आता है। कोडिंग तो मेरे से बेटर सबको आती है यहाँ पे, पर क्या नहीं आता जिसकी वजह से तुम्हारे चांसेस है ना बनाने के, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट इज बी रूथलेसली कंपेटिटिव। डोंट थिंक के इट इज़ नॉट अ कंपेटिटिव मार्केट। मतलब कट थ्रोट है,
स्किल सेट बताने की जरूरत है क्या? बाय द वे मेरे पास टाइम लिमिटेड है। सबको पता है क्या क्या लगेगा ऐप एक्सचेंज ऐप बनाने के लिए स्किल सेट्स? देखो टेक्निकल तो तुमको मेरे से अच्छी तरीके से होता है, कोडिंग लगेगी, आर्किटेक्चर वाला बनाने वाला लगेगा जो स्केलेबल लेवल पे बना दे या कुछ कर दे, फंक्शनल लेवल पे इंसान लगेगा जो मार्केट रिसर्च एनालिसिस कर दे, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी रोड मैप बिल्डिंग कर दे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले लोग लगेंगे। लेकिन इसकी स्किल सेट भी लगेगी, पीपल स्किल्स लगेगी। जब तक तुम्हें स्टोरी टेलिंग नहीं आएगी तुम नहीं कर पाओगे, जब तक तुम्हें कोलैबोरेट करना नहीं आएगा। तुम तुम्हारे ईगो लेके बैठे रहोगे, मैं क्यों करूँ उसके साथ, मैं क्यों करूँ, मैं उसको क्यों पूछूँ, मैं छोटा हूँ वो बड़ा है, कोई मतलब नहीं है। कोलैबोरेट करो, आगे बढ़ो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पीपल स्किल्स अगर नहीं है मत बनाना, ऐप घर बैठ जाओ। Customer centric mindset. If you don't have the customer centric mindset, I don't think you'll be able to build an app exchange application. Then the third and the most important resource that you can collect to build an app exchange application is the people that you're going to build it with. Because even if you have the skill sets or not, at the end of the day you'll not be able to execute onto it. Because when things go like in scale, you would need people and amazing and great people to execute on top of it, and those people need to have the skill sets to execute on top of it. So you'll have to recruit them, and in order to recruit them you need to have an idea कि अच्छा मार्केटिंग वर्क कैसे करती है, अच्छा you need to have an idea सेल्स वर्क कैसे करती है। तो आपके पास भी वो स्किल होना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको लगेगा मैं तो डेवलपर रहूंगा और मैं ऐप एक्सचेंज एप्लीकेशन बना दूंगा और वो चल जाएगी और पैसे कमा लूंगा, सेल्स समझने की जरूरत है, सेल्स पे ही चीजें चलेगी और उसी से सारे काम होंगे। पीपल कौन कौन से लगेंगे? रिक्रूटमेंट। सबसे पहले मैं रिक्रूटमेंट इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐप बनाना चालू कर देते हैं और सोचते हैं हम ही सेल्स कर लेंगे, हम ही कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, तुम्हें लोग चाहिए। और सबसे पहले रिक्रूटमेंट वाला हायर करोगे तो तुम्हारी जर्नी जो 5 साल की है वो 2-2.5 साल के अंदर हो जाएगी, क्योंकि वो तुम्हें लोग ला के देंगे जो वो काम करके देंगे और तुम स्ट्रक्चर तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करवा पाओगे। नेक्स्ट इज मार्केटिंग, नेक्स्ट इज सेल्स, फिर नेटवर्क्स एंड पार्टनरशिप्स, बिकॉज नॉट एवरीथिंग कैन बी डन अलोन, यू वुड नीड नेटवर्क्स, यू वुड नीड पार्टनरशिप्स, and you'll have to figure out a win-win situation in all of the partnerships that you get into. Then you'll need people from whom you can raise capital if you're looking for, and from whom you can get funding if you're looking for. And उनके साथ credibility भी important है। You cannot easily hire people अगर आपकी credibility बाजार में नहीं है तो। Similarly, you cannot raise funding or raise capital if you do not have credibility out there in the market. So focus on how you can build the credibility in order to gather all of these resources. Then you would need money. और यहाँ पे मैंने लिस्ट लिख कर रखी है, आराम से पढ़ लेना। प्रेजेंटेशन डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दे दूंगा किस किस चीज़ों के लिए मनी चाहिए। पर ऐसे यहाँ पे कोई ऐसा है कि जो ऐसे कह रहा है ऐप एक्सचेंज ऐप बनाने के लिए हमें मनी नहीं चाहिए? एनीबडी चाहिए? ठीक है, तो पैसा चाहिए भाई, सब चीज़ों के लिए चाहिए। देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंसेस, प्रोग्राम फीस, ऑडिट फीस, सैलरीज, लिस्टिंग फीस, टूल, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, रेंट्स। और एक और चीज़, प्लान फॉर डबल ऑफ वॉट यू, मतलब अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे ऐप में इन्वेस्टमेंट 10 लाख का जाएगा तो प्लान फॉर एटलीस्ट 20 to 30 लाख, क्योंकि वो 2 से 3 गुना जाएगा ही जाएगा। ये फैक्ट है और तुम रोक नहीं पाओगे उसको, ठीक है। तो प्लान फॉर दैट, यू नीड एटलीस्ट दैट मच मनी। नाउ फोर्थ स्टेप इज एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। वंस यू हैव गैदर्ड द रिसोर्सेज, और इफ यू आर ओके कि ठीक है अलोंग द वे आई विल बी एबल टू गैदर द रिसोर्सेज, नाउ द टाइम कम्स टू एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट। व्हेन आई सेड एग्जीक्यूट, 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 इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। ऑब्सेसिवली एग्जीक्यूट करना है डेली बेसिस के ऊपर और आइटरेट करते चले जाना है रेगुलरली। आते हैं स्टेप्स के ऊपर। फर्स्ट, बिल्ड द ऐप, टेस्ट इट, इंटरनली टेस्ट कर लो। सबसे बेस्ट टेस्टर तुम्हारी एप्लीकेशन का तुम्हारा यूजर होगा। यूजर्स को फ्री लाइसेंसेस दो, ये दो, वो दो, जो भी तुम्हें करना है वो करो, पर उसको टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके हिसाब से बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेट द प्राइसिंग मॉडल, आफ्टर सेटिंग द प्राइसिंग मॉडल, लिस्ट इट, मार्केट इट, सेल इट, एंड जितना आसानी से मैंने कह दिया मार्केट इट, सेल इट, ये इतना आसान है नहीं, तो मतलब वो देखना कैसे करना है। और अगर सवाल हो इससे रिलेटेड तो एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी हैविंग Q&As, और उस सेशन के बाद में बाहर जाके मैं बात कर लूँगा इस बारे में। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन आई विल बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम। अब एक और चीज़, जी स्टेप देखो, रिपीट ऑल ऑफ द अबव एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि लास्ट में आंसर भी लिखा हुआ है, बिकॉज बिल्डिंग एन ऐप इज नॉट अ वन टाइम बिल्ड एंड फॉरगेट थिंग, इट्स अ डेली जॉब। तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम्हारे फ्लैट के अंदर जो तुमने इंटीरियर डेकोरेशन करवाया है वो वन टाइम जॉब जैसा एक प्रोडक्ट बिल्ड कर दो, या तुमने एक फ्लैट खरीद लिया और वो किराए पे चल रहा है और वो तुम्हारा किराया आता जा रहा है। प्रोडक्ट का बाजार ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू रेगुलरली आइटरेट ऑन टू इट, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू आइटरेट ऑन टू इट, यू आर गोइंग टू लूज मार्केट शेयर इनिशियली, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू लूज द कंप्लीट मार्केट, राइट। एंड और उसके बाद में इवन इफ यू आर आइटरेटिंग, द मार्केट्स डिमांड माइट चेंज, so you'll have to start off from scratch again. So it's a very volatile market in the sense, and all what you can do while you're into that market is repeat as quickly as possible all of the above steps. Build the app again according to the new requirements that the market has, right? And who is the market?
Customers, right? So at the end of the day, you have interactions, have communication with the customers regularly to understand where the market is heading towards, and focus on to how you can iterate all of these things regularly. And of course, you'll not be able to do it by yourself. You'll need the team to do it. So regularly have your team working on to it. और ऐसा नहीं होता एक बार ऐप बनाए उसके बाद तुम जिन लोगों को रखा था वो ऐप बनाने के लिए उनको फ्री कर दो, उनकी ज़रूरत नहीं है, उनका खर्चा नहीं होगा. Forget about it. ठीक है. In order to maintain that application, in order to iterate that application also, you would need definitely need to do the reiteration process over there. Set the operations right from day one to scale easily. एक और चीज़ majority of the cases के अंदर क्या होता है, जो लोग ये sales भी कर लेते हैं, marketing भी कर लेते हैं और develop भी करा लेते हैं, उनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो scale करने में दिक्कत खाते हैं. और स्केल करने में वही दिक्कत खाता है जिसने ऑपरेशन सही तरीके से सेट नहीं कर रखे. और अगर ऐप की बात करूँ, ऐप के अडॉप्शन की बात करूँ, तो इन दैट केस इट्स द आर्किटेक्चर ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज नॉट स्केलेबल, जिसकी वजह से दिक्कत आती है, कुछ आती है. तो अगर आर्किटेक्चर शुरुआत से सही सेट कर सकते हो तो करो. परफेक्ट नहीं बट सही स्केलेबल हो. ठीक है, चैलेंजेस नहीं है तुम्हें ज़बरदस्ती के. और फिर स्टेप 5 इज मेकिंग मनी. हाउ कैन यू मेक मनी? हेलो, हाउ कैन यू मेक मनी? ठीक है, बात लाइसेंस से सेल कर दो और रोज सेल करने पड़ेंगे भैया. ठीक है, ये मत सोचना कह रहे 10 कस्टमर आ गए, इतना पैसा आ रहा है, यही खूब है. कब वो 10 में से 8 चले जाएंगे पता नहीं पड़ता. तो आपकी जॉब यही है, रोज सुबह उठो, अगले 2 कौन उठाने हैं उन पे वर्क करो, टारगेट करो. 4 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, फोकस करो उनको कन्वर्ट करने में और उसके बाद मतलब उनको लाइसेंसेस बेचो. दूसरा तरीका क्या है? हेलो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड तो लाइसेंसेस ही होगा ना. वो तो प्राइसिंग मॉडल में आ गया था ना. अपसेल क्रॉस सेल इसी में आ गया. रोज तुम देखो तुम स्केल कैसे करोगे. ठीक है, तुमने भाई तुम रुपए कमाने लगे तो 2 रुपए कैसे कमाना है, 2 कमाने लगे तो 4 कैसे करना है. मतलब अगर हिम्मत है तो मतलब पर एक और चीज़ समझना, एक प्रोडक्ट बनाने से दूसरा प्रोडक्ट बना, आपको क्या लग रहा है सेल्स फोर्स के पास पैसे की कमी है क्या? सेल्स फोर्स लोगों की कमी है क्या? सेल्स फोर्स क्यों बनाए प्रोडक्ट्स एक्वायर कर रहा है, खुद नहीं बना सकता क्या? तो एक प्रोडक्ट मैनेज हो जाए वो बड़ी बात होती है, दूसरा प्रोडक्ट बनाना आप अलग चैलेंज. ये तो स्केलिंग ही हो गया ना एवरीडे. ठीक है, और दूसरा भाई एप्लीकेशन बेचनी है अब. ठीक है, अब एप्लीकेशन बेच रही है या कंपनी बेचनी है या क्या करनी है, उसके स्टेप्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं. सबसे पहले अगर तुमको पहले आइडेंटिफाई करो कौन सी चीज़ें जो तुम्हें स्केल करने से रोक रही है. अगर कैपिटल है तो तुम्हें फंडिंग रेज करनी पड़ेगी. अगर क्या हुआ, अच्छा दूसरा पुअर प्रोडक्ट अडॉप्शन है तो फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस एंड गेट द बेस्ट पीपल टू फोकस ऑन देम. इफ इट इज एक्सेस टू अ नेटवर्क तो गेट द पार्टनर्स. फोकस फिगर आउट कि कैसे कोई पार्टनर मिल सकता है या कोई इंसान मिल सकता है जिसके थ्रू उस नेटवर्क में एंटर कर सकता है और उस नेटवर्क के लोगों को सेल कर सकता हूँ. इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट द मार्केट शेयर देन एंजॉय लाइफ, हैव अ चिल लाइफ. और फिर सेल द ऐप टू VCs, private equity funds, to other companies that are interested, or at the end of the day to Salesforce. And I think that's pretty much all what it is. Thank you so much. Any questions? All appreciated. Related to the topic, not related to the topic, happy to answer. Anybody? यार इतना इजी समझाया क्या, मतलब या तो क्वेश्चन ही नहीं है या समझ नहीं आया, दोनों में से एक ही चीज़ है. क्या नहीं है? हाँ जी प्लीज़. कैन वी हैव अ माइक ओवर देयर? हाँ आप बोलो, सुनाई तो दे जाएगा. अगर आपका प्रोडक्ट है सही और ऐप एक्सचेंज, तो जो पहला रिव्यू है आज के पहला रिव्यू खुद डाल दो. मत सोचो क्या. एक सेकंड. हाँ मतलब ये टॉकिंग. सो हर क्वेश्चन वाज क्या आपका प्रोडक्ट नया है और आपके अभी पहला रिव्यू भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मतलब हाउ टू बिल्ड दैट क्रेडिबिलिटी. भी डाल दो यार, रिव्यू तो नहीं है. मतलब मेरे को ऑफिशियली बोलना नहीं चाहिए ये बात, पर ये तो शायद सेल्फ अंडरस्टूड है. और नहीं है तो फिर मतलब ये करो कि किसी को फ्री में भेज दो तुम्हारी एप्लीकेशन और उसको बोले आपको अच्छी लगे तो रिव्यू डाल देना. मतलब फिर ऐसे देखो, मैं यही होगा. और कोई ऑप्शन नहीं, चॉइस नहीं है, सच में नहीं है. और मतलब एक और चीज़ यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बोली थी, बी क्विक, वैल्यू टाइम. हाँ प्लीज़, किसका था क्वेश्चन? हाँ जी. हाउ टू मार्केट एंड सेल दैट प्रोडक्ट. यार you'll first have to understand the target audience really well and the way they buy it or the behavior which they buy. Do they buy through referrals only? Do they buy through marketing only? What kind of a target audience are you targeting? और आपको नेटवर्क के थ्रू बेचना पड़ेगा, पार्टनरशिप्स के थ्रू बेचना पड़ेगा, ट्रस्ट के थ्रू बेचना पड़ेगा.
कैसे बेचना पड़ेगा उस हिसाब से आपको मार्केटिंग और अपनी सेल्स स्ट्रैटेजीज फिगर आउट करनी पड़ेगी. एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज गेट समवन हु इज एक्सपीरियंस इनटू इट to design the best marketing and the sales strategy for you and continuously iterate on top of it or pivot it as per the needs and requirements. मतलब यही है, क्योंकि if I'll tell you कि SEO कर दो, ये कर दो, लिस्टिंग कर दो, वो कर दो, I don't think मतलब all of these things really work out. तुम आपको समझ आ जाता है एक पॉइंट के बाद कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. तो या तो सब कुछ करो और सब में टाइम एनर्जी पैसा और ये सारी चीज़ें लगाओ और फिर फिगर आउट करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या जिसने ऑलरेडी कर रखा है उससे जाके पूछ लो भैया आपका कैसे चला था, भैया बता दें कैसे चला था, वो सेम चीज़ रेप्लिकेट कर दो और आपके वर्कआउट मोस्टली 90% ऑफ द टाइम कर जाती है. एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज. सिक्योरिटी रिव्यू टाइम विंडो को कैसे कम कर सकते हैं? सिक्योरिटी विंडो टाइम रिव्यू को ऐसे कम कर सकते हैं कि वो जो सिक्योरिटी रिव्यू करने वाले जो लीड्स है वो आपके साथ घूमने जाते हो बैंगलोर में या हैदराबाद में. एक तरीका है ना, लास्ट आपको कुछ और मिला. और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई ऑप्शन है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है. अब तो उन्होंने वो लाइसेंसिंग कॉस्ट भी शायद वन टाइम कर दी, वो रिव्यू कॉस्ट भी वन टाइम कर दी. तो ठीक है, पहले तो वो कम से कम ज़्यादा देनी पड़ती. $9 ही है. हाँ वही तो, पर रिव्यू कर दिया ना पहले वो पहले अच्छा हाँ ठीक है हाँ पहले वन टाइम थी. हाँ तो वही है, तो उनके साथ अगर नहीं घूमोगे तो वो टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. एनीथिंग एल्स, एनीबडी, एनीवन? नो, आर वी गुड? चलो, thank you so much. Even if after this if you have any questions, do let me know. I'm Shrey Sharma once again, and you can feel free to get connected with me on all of the social media profiles. Just search Shrey Sharma on Google, you'll get me. तो बस, thank you so much. Thanks.